یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ میں اس ڈاکٹر کو ڈھونڈ رہی ہوں جس نے مجھے فون کیا تھا۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ڈاکٹر اے ڈاکٹر اینی۔ ہاں بالکل، ان کا نام ڈاکٹر اینی ہے۔ مجھے خود کو سنبھالنا ہے اسکارلٹ، خود کو سنبھالو۔ اگر تم ہی ٹوٹ جاؤ گی تو اپنا خیال کیسے رکھو گی؟ اپنے بچوں کا خیال کیسے رکھو گی؟ اور نہیں، اینڈریو وہ آخری نام ہے جو میں اس وقت سننا چاہتی ہوں۔ معاف کیجیے گا نرس، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ڈاکٹر اینی کہاں ہے؟ نہیں، کیا آپ مجھے ان کے پاس لے جا سکتی ہیں؟ آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ کیا آپ کا ان کے ساتھ کوئی اپائنٹمنٹ ہے؟ کیا آپ کو آج ہونے والے لفٹ کے حادثے کے بارے میں معلوم ہے؟ جی ہاں، کیوں؟ میں وہی شخص ہوں جس کا نمبر ان دو لوگوں کے فون میں ملا ہے جو اس حادثے میں شامل تھے، اور مجھے فون ڈاکٹر اینی نے کیا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اسکارلٹ ایورگارڈن ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی، اس لیے برا کرم مجھے ان کے پاس لے چلی۔ میں خود انہیں بتا دوں گی کہ میں وہی ہوں جسے انہوں نے فون کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آئیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ مجھے کمرہ نمبر 8 کی طرف لے جا رہی ہے۔ میرے اندر جیسے قیامت برپا ہے، مگر پھر بھی میں خود کو ممکنہ حد تک سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ دروازہ کھولتی ہے اور ہم اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اینی یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ آج اپ نے انہیں فون کیا ہے اور اس حادثے کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ درست کہہ رہی ہیں، میں نے واقعی کسی کو فون کیا ہے۔ آپ کا فون نمبر کیا ہے؟ 684010۔ جی یہی نمبر ہے۔ آپ اس وقت اس کمرے میں موجود ہیں جہاں وہ دونوں مریض رکھے گئے ہیں جنہوں نے اپنی جان کھو دی ہے۔ کیا میں ان کے ساتھ کچھ وقت اکیلے گزار سکتی ہوں؟ جی ہاں، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ چند منٹ بعد واپس آؤں گی کیونکہ لاشوں کو زیادہ دیر تک یہاں نہیں رکھا جا سکتا۔ ان دونوں کے جسم سفید چادر سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ میرا ہاتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور ان کے چہروں پر پڑی چادر کا حصہ ہٹا دیتا ہے۔ یہ وہ نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، یہ ہیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ ممر پیاری ماں اور بابا جان، میرے ہونٹ کانپ رہے ہیں، آنسو بے قابو ہو کر میری آنکھوں سے بہہ رہے ہیں، میری سانس ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی ہے۔ میں آپ سے کہتی ہوں نہ کہ گھر واپس آ جائیے۔ میری آواز روند رہی ہے۔ آپ یہاں اسپتال میں کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے ہیں۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ آپ اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے؟ میرے گال آنسوؤں سے بھیگ رہے ہیں۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ کو وہ دن یاد ہے جب ہم تینوں اپنے گاؤں میں بارش میں بھیگ رہے تھے، ہنس رہے تھے، خوش تھے؟ میری آواز ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، مگر اب وہ ساری بارش میری آنکھوں میں آتر رہی ہے، اسی لیے یہ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ میں اس وقت بھی بارش میں بھیگ رہی ہوں، لیکن یہ بارش اسپتال میں برس رہی ہے۔ یہاں پودوں کی خوشبو نہیں ہے، یہاں صرف خون اور موت کی بو ہے۔ یہاں پرندوں کی چہچہاہٹ نہیں ہے، یہاں صرف درد میں ڈوبے لوگوں کی چیخیں ہیں۔ کیا آپ کو یہ جگہ ہمارے گھر سے زیادہ پسند آ رہی ہے؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ کیا آپ اپنی بیٹی کو نہیں دیکھنا چاہتے؟ میری تھوڑی لرز رہی ہے۔ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر کہیں بہت دور جانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ آپ تو ہمیشہ مسکرا کر خدا حافظ کہتے ہیں، مگر اس بار آنسو میری پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ اس بار آپ کچھ بھی نہیں کہتے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ہی میری پہچان ہیں، اور آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، صرف ایک چلتی پھرتی لاش۔ آپ مجھے اپنے آخری الفاظ تک نہیں دیتے۔ آپ مجھے یہ موقع بھی نہیں دیتے کہ جب کبھی میں آپ کو تکلیف پہنچاتی ہوں تو آپ سے معافی مانگ سکوں۔ اچانک میرے سینے میں شدید جلن اٹھ رہی ہے۔ اف، میں دوبارہ خون کھانس رہی ہوں، لیکن اس بار خون پہلے سے کہیں زیادہ ہے،
और ऐसी हालत में भी मुझे इस शख्स को फ़ोन करना पड़ रहा है जिसका नाम तक सुनना नहीं चाहती, और मुझे वापस इस जगह जाना पड़ रहा है जिससे अब मुझे नफरत होने लगी है। मुआफ़ कीजिएगा मिस, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम लाशों को यहाँ से ले जाएं। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या आप किसी डॉक्टर को दिखाना चाहती हैं? मैं इस पैसे को इस्तेमाल नहीं करना चाहती जिसके लिए इसने मेरे कीमती वालिदैन का नाम लेकर मुझे धमकी दी थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या आप मेरे लिए एक एहसान कर सकती हैं? यहाँ इस शख्स को फ़ोन कर दीजिए। क्या ये आपके शौहर हैं? जी। हेलो, मैं अस्पताल से बात कर रही हूँ। आपकी बीवी ने अभी अभी अपने वालिदैन को खोया है और उनकी हालत मुस्तहकम नहीं लग रही। अब वक्त आ गया है कि हम लाशों को ले जाएं। क्या आप आकर उन्हें ले जा सकते हैं? क्या लाशन? ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ। वो कमरा नंबर 8 में है। मुझे बताने का शुक्रिया, मैं अभी पहुँचता हूँ। अल्लाह हाफिज। आधे घंटे बाद मैं कमरा नंबर 8 तक पहुँच रहा हूँ। वो कुर्सी पर बैठी है। इसका चेहरा जमीन की तरफ झुका हुआ है और उसके दोनों हाथ पेशानी पर रखे हुए हैं। मुझे इस वक्त इसे तसल्ली देनी चाहिए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो खुश भी होगी, क्योंकि वो हमेशा से मुझसे यही चाहती रही है। कमरे में आने से पहले मैं हादसे के बारे में मालूमात हासिल कर लेता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके कंधों पर हाथ रखता हूँ और थोड़ा सा झक जाता हूँ। मुझे नहीं मालूम ऐसे वक्त में लोगों को कैसे तसल्ली दी जाती है, लेकिन मैं वही करने की कोशिश करता हूँ जो आम तौर पर लोग करते हैं। मुझे तुम्हारे वालिदैन की मौत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। ये उनके लिए यकीनन एक बहुत खौफनाक हादसा रहा होगा। मुझे इसकी हमदर्दी नहीं चाहिए। आपको मेरे लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है एंड्रयू। यकीनन मुझे तुम्हारे लिए बुरा महसूस होना चाहिए। तुम ये क्या कह रही हो? जब किसी करीबी शख्स के साथ ऐसा सानिहा पेश आए तो इंसान को यही महसूस होना चाहिए ना, तो वो सिर्फ दूसरों के रवैयों की नकल कर रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को एक स्क्रिप्ट दे दिया जाए और वो इसके मुताबिक अदाकारी कर रहा हो। करीबी शख्स? क्या मैं आपके करीब हूँ? तुम मेरी बीवी हो। बच्चे कहाँ हैं? मैं यहाँ आने से पहले उन्हें घर छोड़ आया हूँ। क्या आपकी माँ ने आपको यहाँ आने की इजाज़त दी है? इजाज़त? क्या मतलब? क्या आप खुश नहीं हैं कि अब आपको मेरे वालिदैन पर अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा? आपको उनकी मदद करना कितना बोझ लगता था, क्योंकि उनकी एक बिगड़ी हुई बेटी मुझ जैसी थी। आपने उन्हीं का नाम लेकर मुझे धमकी दी थी ना? क्या यह हकीकत में कुछ ज्यादा ही बदतमीजी नहीं कर रही? सुनो लेटी, इस दुनिया में कोई हमेशा नहीं रहता। एक ना एक दिन सबको जाना होता है। इसलिए मेरा मतलब यह है कि तुम इस वक्त शदीद सदमे में हो, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें अभी बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम ऐसी बातें कह सकती हो जो आम हालात में कभी ना कहती। आपको इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है एंड्रयू, क्योंकि मैं इस वक्त जो कुछ कह रही हूँ इससे पूरी तरह वाकिफ हूँ। फ़िलहाल घर चलते हैं लेटी। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ जनाजे में भी शरीक होऊंगा। मम। खुदा हाफिज माँ। खुदा हाफिज बाबा जान। मेरे दिल का दर्द फिर से जाग उठता है। आंसू बार बार मेरी आंखों को भिगो रहे हैं। मत रो लेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो मेरे आंसू पूंछने की कोशिश करता है। नहीं प्लीज, मुझे कुछ वक्त और कुछ फासले की ज़रूरत है। ठीक है चुल्लू, हम अस्पताल से बाहर निकलते हैं और गाड़ी की तरफ चलते हैं। आओ बैठ जाओ। मुझे नहीं लगता मैं अगली सीट पर बैठ सकती हूँ। मैं पिछली सीट का दरवाज़ा खोलती हूँ और बैठ जाती हूँ। मैं आपके घर नहीं जाना चाहती एंड्रयू। मुझे मेरे वालिदैन के घर छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होगा। जब बच्चे मुझसे पूछेंगे कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? और मेरी माँ? आप अपनी माँ की फिक्र ना करें। वो वैसे भी मुझे वहाँ पसंद नहीं करती, इसलिए वो खुश ही होंगी। स्कारलेट। लेटी, तुम अभी ज़हनी तौर पर ठीक हालत में नहीं हो, इसलिए कुछ मत कहो। एंड्रयू का घर। मैं वापस आ गया हूँ। खुश आमदीद बेटे। तुम्हें काफ़ी देर लग गई। इसे तुम्हारे साथ आने के लिए कितनी बार कहना पड़ा? सास हमेशा की तरह बेपरवाह है, चाहे कुछ भी हो जाए।
ऐसी बात नहीं है। वाकई भाई, क्या आप यकीन से कह रहे हैं कि आप हमसे कुछ छुपा नहीं रहे? मैं तो समझती थी कि अपने वालिदैन की मौत के बाद वो आखिरकार अपना असल रंग दिखाएगी। क्या वो इसी मौका का इंतजार नहीं कर रही थी? मैं ठीक कह रही हूं ना भाभी? मरते वक्त इन्होंने आपको कुछ ना कुछ सिखा ही दिया होगा। हा हा। थप्पड़। अपना मुंह बंद रखो उमालिया। मैं तुम्हारी बदतमीजी और बचगाना हरकतें कई बार बर्दाश्त कर चुकी हूं, मगर तुम कुछ सीखती ही नहीं हो, है ना? एंड्रयू और बाकी सब लोग हैरत से मुझे देख रहे हैं। ये लड़की, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोती जैसी बेटी पर हाथ उठाने की? माँ प्लीज बस कीजिए। मैं भी स्कारलेट की हरकत पर नाराज हूं। मैं खुद इस मामले को संभालता हूं। स्कारलेट, अभी मेरे साथ कमरे में चलो। क्यों जाऊं? क्यों आपके साथ कमरे में जाऊं? जब आप सब लोगों को मुझे जलील करने और मेरे साथ जो चाहे करने का हक हासिल है, चाहे कोई भी देख रहा हो, तो फिर मैं क्यों परवाह करूं? आप गलत शख्स पर गुस्सा कर रहे हैं एंड्रयू। मैं जानती हूं मैंने आपकी बहन को थप्पड़ मारा है, लेकिन वो इसकी मुस्तहिक थी। मेरे वालिदैन मर गए हैं एंड्रयू। मेरे वालिदैन मर गए हैं। हर इंसान की एक हद होती है, और जब कोई इस हद को पार करने की कोशिश करता है तो फिर नताइज भी सामने आते हैं। वो मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, मगर मैं इसका हाथ रोक लेती हूं। ये मत सोचें कि आप जब चाहे मुझ पर हाथ उठा सकते हैं एंड्रयू, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुमने अभी जो किया है, इससे तुमने उमालिया को दुरुस्त साबित कर दिया है। तुम इस पर टाइम बम की तरह फट पड़ी हो। और कब? अपने वालिदैन की मौत के बाद। आप नहीं समझते हैं ना एंड्रयू? मेरी आवाज लरज रही है। आंसू मुसलसल मेरी आंखों से बह रहे हैं। सांस टूट रही है। आप सब इतने खुद गरज और संग दिल कैसे हो सकते हैं? मुझे बताइए। मुझे मेरी गलती बताइए। और आप मुझे इस शख्स पर गुस्सा करने की वजह से मारने वाले थे, जिसने मुझ पर और मेरे उन मासूम वालिदैन पर हमला किया जो आज मर गए हैं। वो एक लम्हे के लिए साकित रह जाता है। लेटी। मुझे लेटी मत कहो एंड्रयू। मुझे घन महसूस होती है, क्योंकि तुम मेरे साथ ऐसे पेश आते हो जैसे मैं तुम्हारे पास पड़ा हुआ एक बोसीदा खिलौना, जिसे तुम सिर्फ इस वक्त उठाते हो जब तुम्हें किसी चीज की सफाई करनी होती है। तुम हद पार कर रही हो स्कारलेट, और ये बेरुखी भरा लहजा किया है जो तुम आजकल मेरे साथ इस्तेमाल कर रही हो। तुम तो हमेशा मेरे साथ यही लहजा इस्तेमाल करते हो, है ना? इसलिए तुम्हें तो मुझसे बेहतर मालूम होना चाहिए। मुझे हल्का सा चक्कर महसूस हो रहा है। शायद जनाजे से पहले थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, वरना मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी और इस शख्स के सहारे आ जाऊंगी जिसके सहारे आना नहीं चाहती। तुम कहाँ जा रही हो? ड्राइंग रूम में। क्यों? आराम करने। ड्राइंग रूम में क्यों? हमारे कमरे में आ जाओ। हमारा कमरा? क्या मजाक है? वो हमारा कमरा कब था एंड्रयू? क्या तुम भूल चुके हो कि तुमने मुझे खुद वहां से निकाला था? वहां वापस जाना सिर्फ मुझे डरावने ख्वाब याद दिलाएगा। उन दिल तोड़ देने वाली यादों की वजह से मैं आराम नहीं कर सकूंगी। स्कारलेट, आओ तो। एंड्रयू, प्लीज। मैं अपने लरसते हुए हाथ उसकी तरफ बढ़ाती हूं। उन हाथों को देखो। मैं तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगती हूं। मुझे सिर्फ चंद लम्हों का सुकून दे दो। मैं सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से जिंदा थी, और अब जब वो चले गए हैं तो मेरे साथ ऐसे पेश आओ जैसे मैं मर चुकी हूं। मुझसे जितना काम करवाना चाहते हो करवा लो, मगर खुद को मुझ पर मुसल्लत मत करो, और मुझे भी अपने ऊपर कुछ मुसल्लत करने पर मजबूर मत करो। बस मुझे इस वक्त बता देना जब जनाजे में जाना हो। और प्लीज, आज बच्चों का ख्याल रख लेना। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस हालत में देखें। बस यही कहना चाहती हूं। अब जब तुम मेरे साथ अच्छा बनने की कोशिश करते हो, तो मुझे याद आता है कि मैंने कितनी बार अपने माँ बाप से तुम्हारे बारे में झूठ बोला, कितनी बार अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े समेटकर खुद को जिंदा रखा, कितनी बार ये उम्मीद लगाई कि तुम एक बार मेरी तरफ मोड़कर देख लो, चाहे सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही सही। कितनी बार मैं
इसके बारे में सोचना भी बहुत तकलीफ देता है। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम कभी मेरे साथ नहीं थे, और जब आखिरकार तुम आए तो तुम्हारा आना भी आधे दिल से था। मैं देख सकती थी तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी हरकत में। जनाजे में मैं अपने माँ बाप की कब्र के पास बैठी हूँ, मेरा दिल अजियत से भरा हुआ है। मैं आप दोनों से मिलने आई हूँ, मेरी प्यारी माँ, मेरे प्यारे बाबा जान। हम वहां नहीं मिल सके जहां मिलने का इरादा था, इसलिए मैं यहां आ गई हूं, क्योंकि अब से मैं आप दोनों को सिर्फ यही देख सकूंगी। क्या आप जानते हैं कि मैं कितनी जख्मी हूं? आप ही वो लोग थे जो मेरी खामियों को जानते थे और फिर भी मुझे कबूल करते थे, और आप ही वो वाहिद लोग थे जिनके सामने मैं अपना ये रूप दिखा सकती थी। क्या आप जानते हैं मेरे लिए इन झूठों के निकाब के नीचे जीना कितना मुश्किल था, जिसे मैं कभी उतार नहीं सकती थी, यहां तक कि आपके सामने भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं अपनी असल जिंदगी को इस खुशगवार तस्वीर के पीछे छुपा दूं जो मैं आपको दिखाती हूं, तो आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मैं आपको कभी कोई फिक्र नहीं दूंगी। मैं अंदर ही अंदर चीख रही हूं, क्योंकि मैं आप दोनों को अपने पास नहीं रख सकी ना। अब मैं आपको अपनी जिंदगी के वो राज बताती हूं जो मैंने कभी आपसे नहीं कहे, क्योंकि आप मेरी वाहिद दौलत थे और मैं आपको हर हाल में महफूज रखना चाहती थी। आप ही मेरी जिंदगी का सहारा थे। एंड्रयू ने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, वो हमेशा मुझे तकलीफ पहुंचाता रहा, मुझे बेशुमार आंसू रुलाता रहा, लेकिन मैं उसके सामने कभी नहीं रोई, क्योंकि इस आदमी के सामने रोना मुझे अपनी तौहीन महसूस होता था, जो सिर्फ नजरें फेरना जानता था। इसके घर वाले जब भी मौके पाते मुझे निशाना बनाते, और मुझे कभी सुकून का एक लम्हा नसीब नहीं होता, लेकिन मैं उनसे ज्यादा एंड्रयू को कसूरवार समझती हूँ, क्योंकि इसके पास अपना दिमाग भी है, मगर वो इसे इस्तेमाल नहीं करता। वो सिर्फ एक फर्माबरदार रोबोट बनना जानता है, ऐसा खाली बर्तन जो संगीन से संगीन हुक्म भी बगैर सोचे मान लेता है। एंड्रयू आपकी मौत की खबर सुनकर अस्पताल आया था, मगर मैं इस पर दोबारा एतमाद नहीं कर सकी। मेरे लिए यह समझना मुश्किल हो गया था कि इसके अल्फाज और अमाल हकीकी हैं या नहीं। यकीनन इंसानों को खुद को बदलने का एक और मौका देना चाहिए, मगर मैं इसे पहले ही बेशुमार मौके दे चुकी हूं। मैंने इसे कहा था कि मुझे लेटी कहना बंद कर दे, क्योंकि वो ये नाम सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल करता था जब वो मुझे खामोश करवाना चाहता था, जब वो चाहता था कि मैं बर्दाश्त करती रहूं, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, चाहे वो मुझे अंदर से मार ही क्यों ना दे। और आज मैं इसे बता देती हूं कि अब मैं एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजारूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ इस वक्त जिंदा थी जब अब दोनों जिंदा थे। मैं सिर्फ अब दोनों की खातिर ये झूठी जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि आपने मुझे सिखाया था कि चार दीवारी को जोड़ा जाता है, तोड़ा नहीं जाता। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी दयानतदारी से निभाई है। अब मैं वक्ता फौकता खून भी खांसने लगी हूं। मैं एंड्रयू को इस बारे में बता भी चुकी हूं, मगर उसने अपनी मां की बात मान ली कि मुझ पर पैसे ज़ाय न किए जाएं। मैं खुद अपनी दवाएं खरीद रही हूं और खुद ही ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी किसी को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है। अब मैं चलती हूं बाबा जान। मैं कोशिश करती हूं कि जितनी पुरसुकून जिंदगी गुजार सकूं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। मेरे बच्चे, यकीनन मेरे बच्चे। मुझे उनके लिए जितना मुमकिन हो जिंदा रहना है, और मैं ये सिर्फ एक ही तरीके से कर सकती हूं, हर चीज बर्दाश्त करके, ये दुखा करके जैसे मैं जिंदा ही नहीं, और जैसे मैं अब दोनों के साथ पहले ही मर चुकी हूं। अब के लिए खुदा हाफिज। आप हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहेंगे, चाहे कितना ही वक्त क्यों ना गुजर जाए। जनाजे के चंद दिन बाद दिन का आगाज हो रहा है और मैं सबको नाश्ता पेश करने के बाद एंड्रयू को काम पर रुखसत कर रही हूं। मैं ये क्यों नहीं बता रही कि मैंने नाश्ता कैसे बनाया? भला क्या फर्क पड़ता है? मैं अब जिंदा तो नहीं रही ना। मैं तो बस एक बीवी के फराइज अदा कर रही हूं। मगर एक बात जरूर कहूंगी,
یہ میری زندگی میں پہلی بار ہے کہ اینڈریو میری بات سنتا بھی ہے اور اس پر پوری دلجمی اور بغیر کسی غلطی کے عمل بھی کرتا ہے، جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب میں اس سے کچھ مانگنے کی امید ہی چھوڑ دوں۔ وہ حکم دیتا ہے اور میں ایک وفادار نوکرانی کی طرح اس پر عمل کرتی ہوں۔ کیا تم نے میرے کپڑوں پر استری کر دی؟ جی، بس ایک لمحہ انتظار کریں، بس ایک لمحہ انتظار کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پچھلے کئی منٹوں سے تم یہی جملہ دہرا رہی ہو۔ جلدی کرو اور میرے کپڑے دو۔ جی، یہ لیجیے۔ انتظار کروانے کے لیے معذرت۔ اچھا، میں کام پر جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک گھر کا خیال رکھنا۔ مجھے معاملے کی کوئی شکایت نہیں سننی۔ جی، میں خیال رکھوں گی۔ وہ اب میرے ساتھ پہلے سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے۔ اب تو وہ خدا حافظ بھی نہیں کہتا۔ نہیں، اگر سوچوں تو پہلے بھی وہ صرف رسم نبھانے کے لیے ہی خدا حافظ کہتا تھا، مگر اب وہ اتنا بھی نہیں کرتا۔ میں نے سوچا تھا، اگرچہ میں نے اسے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک مردہ شخص جیسا سلوک کرے، پھر بھی اگر اس کے دل میں میرے لیے کچھ ہوتا تو وہ میری بات کو لفظ با لفظ نہیں مانتا، مگر اب مجھے معلوم ہو گیا ہے میں واقعی اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ آیوں کہہ لوں، اب یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے۔ ایک بار پھر اس نے مجھے اپنے دل سے باہر پھینک دیا ہے۔ وہ واقعی مجھ سے ہر وہ کام کرواتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اس نے مجھے اپنی بیوی کے بجائے اپنی خادمہ بنا دیا ہے۔ شاید میری کہانی سننے والوں میں سے کچھ لوگ کہیں کہ غلطی میری ہے۔ اگر میں وہ بات نہ کہتی تو وہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا، مگر میں یہ کہوں گی، جب کوئی واقعی آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ آپ کے الفاظ دل کے کس زخم سے نکل رہے ہیں۔ اور اینڈریو، وہ یہ کبھی نہیں سمجھ سکا۔ میں اس طرح جینا نہیں چاہتی، مگر خود کو بچانے کے لیے میرے پاس یہی ایک راستہ بچا ہے۔ اگر میں زندگی سے کوئی توقع ہی نہ رکھوں تو شاید میرے لیے سب کچھ آسان ہو جائے۔ شاید میری بات احمقانہ لگے، مگر آج رات میں اینڈریو سے اس کے ماضی کے چند اعمال کے بارے میں سوال کرنا چاہتی ہوں۔ اس اینڈریو کے بارے میں جس نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ کیا وہ واقعی پچھتا رہا تھا؟ صرف دو چہروں والا جھوٹا تھا۔ ملے وقتا فوقتا میرے پاس آتی رہتی ہے، صرف میری برباد حالت دیکھ کر خوش ہونے کے لیے، کیونکہ میں نے اس دن اسے تھپڑ مارا تھا۔ اوے گھر کی نوکرانی، او نہیں، میری زبان پھسل گئی۔ تم تو میرے بھائی کی بیوی ہو، تو بتاؤ کیسی ہو؟ مزے میں ہو؟ خوش ہو؟ اسے جواب دینے اس سے لالنے کا کوئی فائدہ نہیں، کم از کم میری زندگی میں تو نہیں، کیونکہ جس دنیا میں میں اس وقت جی رہی ہوں وہ ایک نہ ختم ہونے والے خوفناک کھیل کی طرح ہے، جہاں ڈراؤنے خواب ایک ایک کر کے حقیقت بنتے جاتے ہیں، جہاں کوئی آپ کے درد کو سمجھنے والا نہیں، جہاں کوئی آپ کو رونے کے لیے اپنا کندھا نہیں دیتا۔ اینڈریو، تم نے مجھے بار بار سکھانے کی کوشش کی کہ میں اپنی ضرورتوں پر قابو رکھوں، مگر تم نے کبھی خود کو کچھ نہیں سکھایا۔ میں نے تمہیں بے شمار بار بتایا کہ مجھے تم سے کیا چاہیے۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ تم کامل بن جاؤ، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ تم کسی سے محبت کرنا سیکھ لو، مگر بدلے میں تم نے مجھے صرف ٹھکرا دیا، نہ اس سے زیادہ، نہ اس سے کم۔ اگر میں آج کسی کے لیے زندہ ہوں تو وہ صرف میرے بچے ہیں۔ میں ایک فقیر بن گئی تھی اور بار بار اپنے دل کی فریاد تمہارے سامنے رکھتی رہی، بار بار تم سے محبت مانگتی رہی، مگر تم ایک سنگدل امیر آدمی بن گئے اور تم نے میرے دل کو بے رحمی سے روند ڈالا۔ میں تمہارے لیے اس روشن ترین شمع کی مانند بن گئی تھی جو تاریک ترین غار میں بھی روشنی دے سکتی تھی، مگر تم نے میرے لیے راستہ ہموار کرنے کے بجائے گڑھے کھود دیے۔ تم نے مجھے اپنی محبت کے لیے ترسا دیا۔ اینڈریو، رات کے کھانے کے بعد سب لوگ رات کا کھانا کھا چکے ہیں اور اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہیں۔ دن ڈھل کر رات میں بدل چکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اینڈریو سے بات کروں۔ ہم اب بھی ایک ہی کمرے میں نہیں رہتے، اس ایک دن کی وجہ سے جس نے میرے دل پر ایک گہرا زخم ثبت کر دیا تھا، اور اس وقت میں اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی ہوں۔
मैं अपना हाथ उठाती हूँ और माँ हुई उंगली से दरवाजे पर दस्तक देती हूँ। कौन है? मैं हूँ, स्कारलेट। इसकी खामोशी के बावजूद मैं दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हो जाती हूँ। मैंने तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी थी, है ना? मुझे मालूम है, मगर ये ज़रूरी है। कहो, क्या तुम इसका रवैया मेरी तरफ देख रहे हो? वो मेरे साथ बिल्कुल एक नौकरानी जैसा सलूक कर रहा है। इसकी पूरी तवज्जो अपने फ़ोन पर है। मैं बिस्तर के साथ रखी कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। एंड्रयू, क्या तुम अपना फ़ोन एक तरफ रख सकते हो ताकि हम ठीक तरह से बात कर सकें? तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ एक मुर्दा शख्स जैसा सलूक करूं, है ना? भला मर्दों से कौन बात करता है? वो मुझसे इतनी रस्मी ज़ुबान में बात कर रहा है कि जैसे मैं उसके लिए एक अजनबी हूं। तुम्हें वो अल्फाज अच्छी तरह याद हैं ना? और इतने पसंद भी हैं कि उन पर बगैर किसी गलती के अमल कर रहे हो। तुमने आज तक मेरी किसी बात पर कान नहीं धुरा, और जब आखिरकार तुम मेरी कोई बात याद रखते हो तो वो यही है। जो सोचना है सोच लो, स्कारलेट। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। मैं तुम्हें कोई जवाब देकर तुम्हारा वो लंबा लेक्चर नहीं सुनना चाहता जो तुम अपनी उलझी हुई फलसफाबाजी से शुरू कर देती हो। हाँ, मेरे होंठ कपकपाते हैं। तो मेरी सारी बातें, मेरे सारे एहसासात और ख़यालात तुम्हें एक लेक्चर लगते थे। मैं खुद से वदा करती हूँ कि नहीं रोऊंगी, लेकिन फिर भी तुम फिर वही तकलीफ देने वाला चेहरा क्यों बना रहे हो? एंड्रयू, मुझे बताओ, इस दिन मुझे वापस लाने के लिए जो कुछ तुमने कहा था, क्या वो सब झूठ था? इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर जो तासुर था, वो क्या था? क्या वो भी झूठ था? नहीं। तो फिर क्या था? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं तुमसे बात कर रही हूं। मेरे दिमाग में जैसे हजारों सुइयां चुभने लगती हैं। स्कारलेट, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो इस एहसास जुर्म की वजह से था जो बार बार तुम्हें तकलीफ देने पर मेरे अंदर पैदा हो गया था। वो एहसास जुर्म जिसने मुझे इस इंसान में बदलने से रोक दिया जिसकी तुम हकदार थी। और मैंने जानबूझकर तुम्हें मजीद तकलीफ दी ताकि तुम मुझसे नफरत करने लगो और मुझे छोड़कर बेहतर जिंदगी गुजार सको। तो क्या तुम मुझे मुआफ कर दोगी? क्या ये क्या कह रहा है? तो इसे शुरू से मालूम था कि वो गलत है, और उसने हम दोनों की जिंदगी का फैसला खुद ही कर लिया। मेरे आंसू बहने लगते हैं। तुमने अपनी इस लनती एहसास जुर्म की वजह से हम दोनों की जिंदगी का फैसला खुद ही कर लिया, और मुझे इतना काबिले एतमाद भी नहीं समझा कि ये बात मुझसे बांट सकते। मेरी आवाज़ कांप जाती है। तुमने मुझे अपने से नफरत करने पर मजबूर करना चाहा ताकि मैं वो जिंदगी गुजार सकूं जो तुम्हें मेरे लिए बेहतर लगती है। तुम्हारे बगैर जिंदगी, इस शख्स के बगैर जिसके लिए मैंने खुद को कुर्बान कर दिया, इस शख्स के बगैर जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। मुआफ करना। मेरा मकसद तुम्हें रुलाना नहीं था। खामोश हो जाओ एंड्रयू। मेरी आवाज़ दर्द से बखर जाती है। खामोश हो जाओ। क्या तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि अगर मुझे यह हकीकत मालूम हो गई तो मुझे कितनी तकलीफ होगी? क्या मुझे जख्मी देखकर तुम्हारे दिल में कभी दर्द नहीं उठा? मैं तुम्हें ये बताने वाला नहीं था। मैं इंतजार कर रहा था कि वो रुक जाता है। मुझे अब खुद नहीं मालूम कि क्या कहूं। मजा आया? हाँ, मैं पूछ रही हूं, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत के साथ खेलकर मजा आया? नहीं स्कारलेट, खुदा की कसम, जब भी मैं तुम्हें तकलीफ में देखता था तो खुद भी दर्द महसूस करता था, लेकिन झूठ मत बोलो। आंसू मेरे गालों पर बहते चले जाते हैं। झूठ मत बोलो। और ये लेकिन क्या है? क्या अब तुम अपने आप को बचाने के लिए कोई और बहाना तराशने वाले हो? अच्छी तरह सुन लो। मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगी। सुना तुमने? सुना? अगर तुम मुझे साफ साफ कह देते कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो, तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती। लेकिन तुमने मेरे साथ ये किया कैसे? मेरे आंसू थमने का नाम नहीं लेते। मैं अपने कमजोर हाथों से इसके सीने पर मुक्के मारने लगती हूँ।
रुको। अब जब मैं इसे गौर से देखता हूं, इसके आंखों के नीचे गहरे सियाह हल्के हैं। इसका चेहरा बेहद जर्द पड़ चुका है और वो बुरी तरह पसीने में भीगी हुई है। एंड्रयू, मेरी सांस टूटने लगती है। तुमने मुझे ये जालिमाना सजा क्यों दी? रुको। स्कारलेट, खांसी खांसी खांसी। उफ, वो खून खांस देती है। मैं फौरन उसके जिस्म का दर्जा हरारत चेक करता हूं। ये बहुत ज्यादा है। मुझे ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। स्कारलेट, स्कारलेट, तुम्हें क्या हो रहा है? इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। मैं इसकी नब्ज चेक करता हूं। खुशकिस्मती से वो अभी सांस ले रही है। आंखें खोलो स्कारलेट। मुझे मत डरा। कुछ तो बोलो। मैं फौरन एम्बुलेंस को फोन करता हूं। सुनसान रात में एम्बुलेंस का सायरन गूंज रहा है। मैं इसका हाथ अपनी हथेली में मजबूती से थामे हुए हूं। बराहे करम मेरे साथ रहो। मैं कभी भी तुम्हें दोबारा तकलीफ नहीं दूंगा। अस्पताल में मैंने क्या कर दिया? मैं कितना घटिया इंसान हूं। मैं कभी उसके लायक था ही नहीं, है ना? तुमने अपनी इस लनती एहसास जुर्म की वजह से हम दोनों की जिंदगी का फैसला खुद ही कर लिया, और मुझे इतना काबिले एतमाद भी नहीं समझा कि ये बात मुझसे बांट सकते। तुमने मुझे अपने से नफरत करने पर मजबूर करना चाहा ताकि मैं वो जिंदगी गुजार सकूं जो तुम्हें मेरे लिए बेहतर लगती है। तुम्हारे बगैर जिंदगी, इस शख्स के बगैर जिसके लिए मैंने खुद को कुर्बान कर दिया, इस शख्स के बगैर जिससे मैं मोहब्बत करती हूं। वो ठीक कह रही है। मैंने हद से ज्यादा खुद गर्जी का मुजाहरा किया। मैं ये सोचता रहा कि वो मेरे बगैर भी ठीक रहेगी, इस शख्स के बगैर जिससे वो इतनी मोहब्बत करती है कि अपने आप को कुर्बान कर सकती है। मैंने इसे इस डिप्रेशन तक पहुंचाया। मैंने इसे बीमार कर दिया। मैंने ही इसे इस हाल तक पहुंचाया। ये सब मेरी वजह से है, सिर्फ मेरी वजह से। वो इस वक्त जिस अजियत में है, वो मेरी ही दी हुई है। मैं एक ऐसे शख्स को खोने वाला हूं जिसने मुझे अपने पूरे दिल से चाहा। मैं उसके तकलीफ भरे अल्फाज भुलाने की कोशिश करता हूं, लेकिन नहीं कर पाता। मुझे माफ कर दो स्कारलेट। मैंने तुम्हें अपने सामने जलते हुए देखा। मैंने तुम्हें रोते देखा। मुझे हमेशा मालूम था कि तुम कब अपने एहसासात को एक निकाब के पीछे छुपा लेती हो, लेकिन मैंने जानबूझकर आंखें बंद कर ले और ऐसे जाहिर करता रहा जैसे मुझे कुछ मालूम ही ना हो। तुम अपनी बेइंतहा हिम्मत और मोहब्बत से हमेशा मुझे हैरान कर देती थी। मैं तुम्हें जितना भी धकेलता, तुम फिर भी मेरी तरफ लूट आती थी। जब मैंने तुम्हें बदलते देखा तो मैंने खुद से कहा, तुम इतनी मजबूत हो कि खुद को संभाल सकती हो, और मैं तुम्हें खुद से नफरत करने पर मजबूर करता रहा। जब भी मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता, मैं इस पर एक और पत्थर रख देता और खुद से कहता, तुम इससे मोहब्बत नहीं कर सकते, वो तुमसे बेहतर किसी की हकदार है। लेकिन जब मैंने तुम्हें अपने वालिदैन को खोते देखा तो मेरे ज़हन में सिर्फ एक ख्याल आया, मैंने इसे इतना बदहाल कर दिया, अब वो किसके पास जाएगी? और जब तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ एक मुर्दा शख्स जैसा सलूक करो, तो मैंने अपने दिल को मार दिया और उसे बर्फ के बेशुमार टुकड़ों से भर दिया, क्योंकि मुझे लगा ये पहली ख्वाहिश है जिसे मैं पूरा कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि सब कुछ मेरे काबू में है, तुम दोबारा मेरे सामने आ गईं, और जब तुमने इस बार मुझसे सवाल किया तो वो सारी बर्फ पिघल गई और मैं सब कुछ कह बैठा। लेकिन शायद मैंने अपने दिल को खामोश करने के लिए जितने पत्थर रखे थे वो काफी नहीं थे, और मैं आखिरकार ये हकीकत कबूल कर लेता हूं कि मैं पहले ही तुमसे मोहब्बत करने लगा था। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं स्कारलेट। मैं मजीद तुम्हारी मुज़ाहमत नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना भी नहीं सकता था, क्योंकि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, इसके बाद मैं खुद से नफरत करने लगा था। जिस तरह मैंने तुम्हें अजियत दी, जिस तरह मैंने तुम्हें तोड़ा,
पहले तुम मेरी हर ज्यादती पर खामोश रहती थी और मुझे लगता था कि तुम्हें मुझसे नफरत दिलाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब तुम सवाल करने लगी और अपनी नाराजगी जाहिर करने लगी तो मेरे लिए वो रास्ता जारी रखना मुश्किल हो गया। इसलिए मैंने जो कुछ मेरे बस में था वो सब किया ताकि तुम मुझसे डरने लगो। रुको, मैं ये क्या कर रहा हूं? क्या मैं फिर अपने अमाल के जवाब पेश कर रहा हूं? स्कारलेट, मैं गलत था। बराहे करम मुझे मुआफ कर दो। मुझे पछतावा है, बहुत ज्यादा पछतावा है। बराहे करम मुझे इस पछतावे में हमेशा के लिए छोड़कर सजा मत दो। रुको, क्या मैं एक बार फिर खुद गर्जी नहीं कर रहा? तुमसे मुआफी मांग रहा हूं बगैर ये सोचे कि तुम्हें बदला लेने का हक भी है। हाँ, मेरी आंखें गीली क्यों हैं? क्या मैं रो रहा हूं? तो मैं वाकई रो रहा हूं। मुझे देखो स्कारलेट, मैं तुम्हारे लिए रो भी रहा हूं। क्या तुम इस हारे हुए इंसान पर रहम करोगी? डॉक्टर आ गए हैं।